module is related to the entity relationship data model. Okay, so this is the first design space before starting actually designing a database. You have to make means before starting actually firing the queries or creating database and all that, you have to create a design for that particular database. Okay, and entity relationship or you can say the enhanced entity relationship models are the best or the basics to start with this design process. Okay, so we are going to study this model. Now, basically, what do you mean by this entity relationship model? There are two words over here: entity and relationship. Okay, so entity is a kind of thing which exists in this real world. Okay, it can be a physical or it can be logical or imaginary. And relationship is nothing but the kind of relationship those entities have. Okay, like between two or more than two entities, a relationship exists. Okay, and accordingly will form a database. Okay, or we will form the tables in the database. So entity relationship model, model, describes the structure of a database with the help of a diagram. So it is a diagrammatic representation which is known as a entity relationship diagram. diagram या short में ERD बोलते हैं इसको. So that we have to create. Okay. model is a design or you can say a kind of blueprint of a database that can later be implemented as a database. Okay, so we will just convert it into the database. We'll write some queries or some commands to create a database according to the design of this model. Okay, so creating model perfectly is very important, and it has whatever constraints that we are understanding. So these constraints you have to put or you have to show into this model or describe in the model, or you can say at the initial level whatever description you are giving, so you have to enlist those constraints in that description, and based on that you can generate the entity relationship model. The main components of model are first, you can say entity set. Okay, now here some words which will come when we start entity slide. Then you'll come to know one word is called as the entity set. Yeah, another word is called as the entity type. Okay, entity type एक one thing है. This is one thing, and entity set is another thing. Okay, दोनों quite similar है, but there is you can say some difference between entity set and entity type. या इन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंटिटी टाइप्स को हम लोग सिर्फ एंटिटी ही बोलते हैं. Okay, then another term is called as a attribute. Attributes specify certain properties about a entity. Like entity, you take example of say student ये एक entity है. Okay, student entities के attributes क्या होंगे या properties क्या होंगे? तो student has a name, student has roll number, student has student ID, unique student ID which belongs to particular college. Student has address, mobile number, parents contact number, percentage of marks, course to which he or she has joined. Okay, ये सब informations है, and all these are called as attributes. तो इनको हम लोग properties या we can call them as a attributes. तो डायग्राम में ये properties attributes से represent होते हैं. And another thing that exists between two entity types is nothing but the relationship. Okay, a relationship that particular one entity type maintains with the another entity type. Okay, say for example, student belongs to particular department. Okay, so student एक entity हुआ, department is another entity, and belongs to ये एक relationship हुआ दोनों में. So this is the basic components of model, and we have to see their types and what are the different attribute types and so on. Okay. So first we'll start with the entity. Okay, now entity is represented in this rectangular box. Okay, in diagram. Okay, now what is basically an entity? The basic object you can say that the model represents is an entity. Okay, तो मॉडल का जो बेसिक यू कैन से ऑब्जेक्ट है, लाइक जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द ऑब्जेक्ट और यू कैन से द डेटा, वैसे इन मॉडल एंटिटी हैज सम इंपॉर्टेंस और इट इज अ बेसिक ऑब्जेक्ट ऑन विच मॉडल कैन बी डेवलप्ड. एन एंटिटी टाइप डिफाइंस अ कलेक्शन. ओके, अभी आ गया वर्ड एंटिटी टाइप. Okay, so what is entity type? Entity type defines a collection or you can say the set
of entities that have same attributes. Okay, like say for example, in one company or say a student in college, one student has his name, roll number, and student ID. Say for example, another student will have same attributes: name, student ID, roll number. Third student, same attributes: name, roll number, student ID. Okay, so every this kind of entity will have same kind of attributes. Okay, so what is basically an entity type? The entity type defines the collection of such entities which have the same attributes. मतलब अगर हम लोग स्टूडेंट की बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट एंटिटी. इट इज अ थिंग इन द रियल वर्ल्ड विथ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ओके, तो ये कोई भी टर्म हो सकता है, नॉट जस्ट लाइक अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉलेज. सो कॉलेज की बात करेंगे, सो फैकल्टी एक एंटिटी हुआ, स्टूडेंट एक एंटिटी हुआ, फैकल्टी या फिर यू कैन से एम्प्लॉय बोल सकते हो, स्टूडेंट इज वन ऑफ द एंटिटी, डिपार्टमेंट एक एंटिटी हुआ. ओके, अकाउंट एग्जाम डिपार्टमेंट, लाइक एग्जाम का स्पेशल अगर आपको डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, सो एग्जाम डिपार्टमेंट हो गया. डिपार्टमेंट इन द सेंस ये मैकेनिकल, कंप्यूटर, लाइक दिस, इलेक्ट्रिकल एंड सो ऑन. सो उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है इन रियल वर्ल्ड, सो दैट वी कॉल इट एज अ एंटिटी. एंटिटी कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी सम इमेजिनरी लाइक बैंक अकाउंट हो सकता है, एंड सो ऑन. एन एंटिटी मे बी एन ऑब्जेक्ट विद अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो हम लोग डिस्कस करते थे. फिजिकल एग्जिस्टेंस से हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन हो सकता है, लाइक कार जो फिजिकल एग्जिस्ट है, हाउस किसी का खुद का घर है, एम्प्लॉय लाइक दिस. और इट मे बी एन ऑब्जेक्ट विद अ कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस, लाइक कंपनी है, जॉब है, यूनिवर्सिटी कोर्स, बैंक अकाउंट. ओके, सो दीज आर द कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस, बट दे कैन बी कंसिडर्ड एज entity only. Okay, so entity can be like physically can be appear, or it can be it has a conceptual existence. It is represented by a rectangle in ER diagram. यहाँ पे already दिखा है. So in ER diagram में ये rectangle से show करते हैं. Okay, at the end of this chapter we'll see there are another ways of representation of ER diagram, but जो basic representation है that you have to draw into the exam, that we are studying here. Okay, but apart from this, ER diagram के और भी अलग तरीके हैं. So if you open different books, okay, अलग अलग आप books open करोगे तो वहाँ पे अलग अलग notations रहेंगे. You can follow any one notation. Okay, so जो basic notation है वो आप follow कर सकते हो. Now next term, that is called as a attribute. So as we have discussed, attributes क्या होता है? So attributes are nothing but a kind of properties that a particular entity has. Okay, attribute is represented with such kind of oval shape. Okay, each entity has attributes, the particular properties that describe it. Like student, जैसे हम लोग ने बोला student, तो student की क्या properties है? उसको roll number होता है, उसका name होता है, उसका contact number हो सकता है, उसके which course he or she has joined, तो कौन से like branch को join किया है. All this sub information is nothing but the attributes, or these are the properties and which can be represented as the attributes of that entity. यहाँ पे एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया है. सो इफ यू टेक एम्प्लॉय एग्जांपल, देन इट मे बी डिस्क्राइब बाय एम्प्लॉयज नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, जॉब, like this. Okay, so these are the different you can say the properties, or these properties can be represented as attributes in a ER diagram. Each particular entity from an entity set will have a value for each of its attribute. Okay, तो ये तो just basic attributes हो गए. Okay, like employee 1 को name रहेगा, employee 2 का name रहेगा, employee 3 का name रहेगा, right? So every employee in that entity type employee will have a value for its respective entity. Okay, so उसका एक value रहेगा for each and every attribute. So like say employee 1 का name है suppose संजय, उसका age say 34, address something, salary 50,000 and so on. वैसे ही employee 2 का information रहेगा, employee 3 का, and so on. Okay, so every attribute should have a value. The attribute values that describe each entity become a major part of the data stored in the database. तो जो हम लोग बोल रहे हैं database, तो database क्या है? ये तो जो schema हो गया, like कि employee है, employee का name is a attribute, age, address, salary, job is a attributes. Okay, but इसके जो values आएंगे, suppose there are 100 employees working in an organization, तो 100 employees का name रहेगा, 100 employees का age, address, salary रहेगा, right? So ये जो data हो गया, or you can say these rows or records are nothing but your major part of the database. Okay, तो ये आपके database का major part होता है apart from the schema.
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इलिप्स और ओवल, तो ऐसे शेप से वो रिप्रेजेंट होता है इन ईआर डायग्राम. सो दिस इज द सेकंड थिंग, दैट इज एट्रीब्यूट्स. नाउ विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स. तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के भी अलग अलग टाइप्स है. विद एग्जांपल्स विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज कंपोजिट वर्सेस सिंपल, जिनको ऑटोमिक भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स. कंपोजिट वर्सेस सिंपल एट्रीब्यूट्स. ओके, अभी ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट का है. सिंपल एट्रीब्यूट मतलब ये ऐसे दिखेगा, एक ही सिंगल ओवल रहेगा. ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, इन द कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में ऐसे लाइक डेरिवेशन रहेगा, मतलब एक एट्रीब्यूट से देयर आर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आर कमिंग आउट. ओके, या फिर ये डायग्राम एक ये नोटेशन है, या फिर यही ओवल्स ऊपर रहेंगे, इसके ऊपर की साइड रहेंगे, या फिर लाइन कनेक्टेड रहेगा, ऊपर की साइड लाइन कनेक्टेड. ओके, सो मोस्टली डायग्रामेटिक में यहाँ पे नीचे दिखा है, बट जनरली हम लोग ऊपर दिखाते हैं. ओके, नीचे भी लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? दे कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब पार्ट्स व्हिच रिप्रेजेंट्स मोर बेसिक एट्रीब्यूट्स विद इंडिपेंडेंट मीनिंग्स. ओके, लाइक कंपोजिट एट्रीब्यूट्स. ओके, यहाँ पे एग्जांपल भी है. Say address attribute of an employee entity can be subdivided into street address, city, state and zip. Okay, इसको डिवाइड किया जा सकता है. Second example, you can take name of anything, name of say student, name of employee, name of person can be divided into first name, middle name, last name. Okay, so name क्या हो गया? Name becomes a composite attribute. Okay, composite attribute का use क्या है कि with the help of this attribute, या तो आप ये all the information you can obtain as a together, मतलब in one attribute. तो यहाँ पे एड्रेस रहेगा, इसके अंदर एड्रेस लिखेंगे हम लोग. यहाँ पे आएगा स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, और एक एट्रीब्यूट यहाँ पे रहेगा, दैट इज कंपोनेंट एट्रीब्यूट, जिसको बोलते हैं जिप. ओके, सो एक एड्रेस से आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट. एंड सेकंड यूज की नहीं, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि वो एम्प्लॉय कौन से सिटी में रहता है. ओके, आई डोंट वांट एंटायर एड्रेस, तो उस वक्त आप सिटी कॉलम को रिफर करके सिर्फ उसका सिटी ऑब्टेन कर सकते हो. ये चाहिए कि वो कौन से स्टेट में रहता है, तो सिर्फ आप स्टेट का कॉलम या ये एट्रीब्यूट से उसका स्टेट ऑब्टेन कर सकते हो. या फिर यू वांट, मुझे पूरा एड्रेस चाहिए, तो पूरा एड्रेस चाहिए, तो इनको क्लब करके यू कैन गेट एंटायर एड्रेस. सो दैट्स व्हाई composite attributes are also important in certain situations. Okay, and simple attributes. Simple attributes, attributes that are not divisible are called simple or atomic attributes. Like age, अभी age को और divide नहीं कर सकते. Okay, so ऐसे कुछ attributes है, like ये pin code. Okay, तो pin code को और कुछ divide नहीं कर सकते. So such kind of attributes are called as simple or atomic attributes that cannot be further subdivided. Okay, so this is one of the type of attributes. Next, single valued versus multi valued attribute. Okay, ये representation है, normally ये attribute का representation है, so you can say it is a single valued attribute का representation है, single value वाला. And when you have a multi valued attribute, so it is in double ovals. Okay, so that is represented as multi valued attributes. What is multi valued attributes? Most attributes have single value. सबको single value ही होता है, like किसी का नाम एक ही होता है, नेम ही सिंगल होता है. फॉर पर्टिकुलर एंटिटी सच एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड सिंगल वैल्यू. ओके, तो जिसका सिर्फ एक स्पेसिफिक नाम है, देन दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. सो फॉर एग्जांपल पिन कोड, अभी एक पिन कोड एक ही रहेगा, सिंगल. ओके, एक जगह के दो पिन कोड्स नहीं होते, राइट? सो इट इज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. नेम कैन बी सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट until and unless आप उसको कुछ जो अलग नाम होता है, सेकेंड नेम, तब तक इट इज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. ओके, से रोल नंबर, वो सिंगल वैल्यूड, एक स्टूडेंट के दो रोल नंबर नहीं हो सकते, राइट? तो इट इज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स. व्हाट आर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स? सर्टेन एट्रीब्यूट्स टेक्स मोर देन वन वैल्यू, मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज ले सकते हैं. आई होप एवरीथिंग इज फाइन. मुझे बैकग्राउंड का स्क्रीन नहीं दिख रहा है. ओके, इट्स फाइन, ठीक है, ठीक है. So say for example, age is a single valued attribute of person entity and contact number attribute is a multi valued attribute. अभी एक आजकल दो सिम्स रहते हैं, right? So one person can have two contact numbers, दो mobile numbers हो सकते हैं. So when you represent a mobile number attribute, then that is called as a multi valued attribute.
तो उसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. ओके, say for example a particular project is or particular branch is distributed over like multiple branches. Okay, तो उस केस में उसके अलग अलग लोकेशंस आएंगे, तो इन दैट केस वो लोकेशंस विल बी द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स. और कुछ केस में लोकेशन एक ही रह सकता है, तो उसमें लोकेशन कैन बी अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. सो दैट डिपेंड्स ऑन द scenario that you are using. Okay, so that is the difference between single valued and multi valued attributes. Okay, लाइक एड्रेस भी हो सकता है, कभी कभी कुछ लोगों के दो दो एड्रेस होते हैं, राइट. सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स. नेक्स्ट टाइप, स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स. ओके, ये जो सिंबल दिख रहा है, दिस सिंबल बिलोंग्स टू द डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स. ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट को बिलोंग करता है. ओके, stored attribute is the attribute from which derived attributes are derived. Okay, तो stored attribute जैसे normal attribute दिखता है वैसे ही दिखेगा, single oval, but ये oval with a dashed lines, that is derived attribute का symbol है. In some cases, two or you can say more attributes values are related. For example, age and birth date. Okay, attributes of a person. तो बर्थ डेट अगर मुझे पता है तो मैं एज ऑब्टेन कर सकता हूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम करंट डेट. आज के डेट से वो बर्थ डेट का डेट माइनस करके एज पता कर सकते हैं हम लोग, कितने ईयर्स का है, व्हाट इज द एज ऑफ दैट पर्सन. ओके, सो दैट मीन्स एज इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट. एज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द बर्थ डेट, तो वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है. ओके, एंड बर्थ डेट इज कॉल्ड एज अ stored attribute in such case. Okay, for a particular person entity, say the value age can be determined from the current date. तो इसके लिए you can say age is a derived attribute. Okay, the age attribute is hence called as a derived and is said to be derivable from birth date attribute, and which is called stored. If you want to take another example, then say for example ki like in one particular department of a company there are a number of employees are there, right? And you want to count the number total employees कितने, ये अगर पता करना है, then it can be derived from the counting the number of employees. तो जो नंबर employees है उनका रोज काउंट करके हम पता कर सकते हैं कि उस कंपनी में कितने एम्प्लॉइज है. सो दैट यू कैन से काउंट ऑफ एम्प्लॉय इज कैन बी अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट. ओके, एंड दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम नॉट अनदर एट्रीब्यूट, बट वो रिलेशन से डिराइव्ड हो सकता है, या फिर फ्रॉम अनदर टेबल के एट्रीब्यूट से भी वो डिराइव्ड हो सकता है. ओके, लाइक से फॉर एग्जांपल नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो नेम से या फिर एम्प्लॉय आईडी से तो हम लोग काउंट करेंगे कि कितने एम्प्लॉय आईडीज है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि उतने एम्प्लॉयज उस कंपनी में है, राइट. So it can be derived not just from any particular attribute, तो attribute से ही नहीं derive कर सकते, दूसरे किसी relation के या दूसरे entity type के attribute से या फिर relation से भी derive हो सकता है, and it is represented with this symbol. Okay, so that is called as a derived attributes. Okay, last this is null attribute. Okay, null attribute is a kind of special kind of attribute. It can take a null value. Okay, मतलब कुछ attributes ऐसे होते हैं जिनके लिए null values assign किया जा सकता है when the value for it is unknown, unassigned, not applicable or missing है. Okay, एक केस ऐसा हो सकता है that you don't know कि अरे उसका मोबाइल नंबर क्या है, so आपको वो blank छोड़ना पड़ेगा, that is empty, या null assign करना पड़ेगा. Okay, सेकेंड ऐसा हो सकता है कि यू नो दैट देयर इज अ वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, बट अभी तुम्हें पता नहीं है. से फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ अ पर्सन, अभी किसी ना किसी को हाइट तो रहता ही है ना, बट हाइट मुझे पता नहीं है उसका कितना है, सो दैट्स व्हाई आई विल कीप दैट फील्ड एज अ नल, तो उसको मैं नल असाइन करूंगा, एंड लेटर ऑन जब भी मुझे पता चलेगा तो मैं उसमें एडिट कर सकता हूँ. ओके, सो इन सच cases null attribute can be helpful, so we can assign that null value to that attribute. Okay, complex attributes. Okay, now complex attributes can be a kind of combination of those multi-valued or you can say the composite attributes. So composite and multi-valued attributes can be nested arbitrarily to form a complex attributes. Okay, like इसका कुछ combination हो सकता है, like a particular person have one address but it has two phone numbers or two contact numbers. Okay, so such kind of attributes can be called as a कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स, मतलब जिसमें मल्टी वैल्यूड भी आता है एंड कंपोजिट थिंग भी इज देयर. ओके, नाउ ये कंपोजिट में और भी डेरिवेशन हो सकता है. फॉर एग्जांपल जो हम लोग ने लिखा था स्ट्रीट एड्रेस,
तो स्ट्रीट एड्रेस भी और फर्दर डिवाइड हो सकता है, लाइक उसका रूम नंबर या फिर अपार्टमेंट नंबर, बिल्डिंग का नेम, स्ट्रीट नेम, ये स्ट्रीट एड्रेस में 3 फील्ड और आ सकते हैं। ग्रुपिंग कंपोनेंट्स ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट बिटवीन पैरेंथेसिस, मतलब ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर आपको कंपोजिट एट्रीब्यूट कंबाइन करना है देन इट इज रिटन इनसाइड अ पैरेंथेसिस एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर बिटवीन ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। से फॉर एग्जांपल, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ये एग्जांपल देखो, अ पर्सन कैन हैव मोर देन वन रेसिडेंस, ओके, मतलब एक के दो एड्रेस है, रेसिडेंस एड्रेस, and each residence can have a single address. Okay, each residence can have a single address and multiple phones. Okay, so उसका एड्रेस पर्टिकुलर रेसिडेंस का एक ही एड्रेस रहेगा एंड फोन नंबर्स अलग रहेंगे या फिर दो या उससे ज्यादा रहेंगे, मल्टीपल फोन नंबर्स रहेंगे। So how this relation can be represented? It is represented as a address underscore phone. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस अंडरस्कोर फोन मोर देन वन रेसिडेंस, मतलब ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, इसको पहले कर्ली ब्रेसेस में लिया है। ओके, ये कर्ली ब्रेसेस में। नाउ आफ्टर दैट इनसाइड इट इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, सो पैरेंथेसिस फॉर्म किया है वेयर यू हैव टू रिप्रेजेंट फोन एंड एड्रेस। ओके, एड्रेस फोन में क्या क्या आएगा, फोन एंड एड्रेस आएगा। ओके, सो फोन अगेन इट इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, क्योंकि इसने बोला है मल्टीपल फोन नंबर है उसके पास, सो ये कर्ली ब्रेसेस में आ गया फोन। एंड इन दैट फोन आप क्या मेंशन कर रहे हो, एरिया कोड कॉमा फोन नंबर, ये मेंशन कर रहे हो। एंड दिस कर्ली ब्रेस इज क्लोज्ड ओवर हियर, मतलब ये फोन का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज हुआ है, मल्टी वैल्यू कॉमा। अभी आगे क्या आ रहा है, आगे जो आ रहा है दैट इज नथिंग बट योर कंपोजिट एट्रीब्यूट का पैरेंथेसिस कंटिन्यू हो रहा है, ये जो ओपन हुआ है यहाँ पे वो कंटिन्यू हो रहा है। तो पहले फोन आ गया, फिर अभी आ गया एड्रेस। ओके, तो एड्रेस इज अगेन अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, तो उसको पैरेंथेसिस आ गया। देन कम्स स्ट्रीट एड्रेस। स्ट्रीट एड्रेस को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसा अभी हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया, तो वो वापस पैरेंथेसिस आ गया, दैट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो स्ट्रीट एड्रेस इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। सो नंबर कॉमा स्ट्रीट कॉमा अपार्टमेंट नंबर, ये क्लोज हो गया, तो ये स्ट्रीट एड्रेस का कंपोजिशन क्लोज हो गया। कॉमा अभी ये आगे का एड्रेस कंटिन्यू होगा, स्ट्रीट एड्रेस कॉमा सिटी कॉमा स्टेट कॉमा जिप, फिर ये क्लोज हो गया, दैट इज ये स्ट्रीट एड्रेस। उसके बाद ये जो ओपन हुआ था एक्चुअल एड्रेस फोन, दैट इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, वो क्लोज हो गया। एंड फाइनल में ये मल्टी वैल्यूड है एड्रेस फोन, क्योंकि उसको मोर देन वन रेसिडेंस है, तो इसके लिए ये वाला क्लोज हो गया। ओके, सो इन सच मैनर यू कैन रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, so these are the various types of attributes. Okay, any doubt till now about this types of attributes? Okay, इसको वापस एक बार रीड करो फ्रॉम द बुक, इट इज गिवन क्लियरली सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज इसी के बेसिस पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है एंड दैट विल बी कंटिन्यू। जैसे हम लोग ने बोला कि आपको केस स्टडी लेना है एंड उसके बेसिस पे ही हम लोग आगे के क्वेरीज फायर करेंगे, डिजाइन बनाएंगे एंड ऑल दैट। नेक्स्ट, ओके, एंटिटी टाइप्स एंड एंटिटी सेट्स, ये जो दो वर्ड्स मैंने स्टार्टिंग में बोले कि वन इज कॉल्ड एज अ एंटिटी टाइप, ओके, एंड अनदर इज कॉल्ड एज अ एंटिटी सेट। तो यहाँ पे जस्ट उसका डिफरेंशिएशन क्लियर होगा कि क्या है एग्जैक्टली। An entity type defines a collection or you can say set of entities that have same attributes. ये definition हम लोगों ने पहले भी देखा कि entity type क्या define करता है, a collection of entities that have same attributes. मतलब अगर हम लोग employee की बात करते हैं, so there are 100 employees, तो 100 employees का name, 100 employees का salary and so on. So ये these are the nothing but you can say the attributes that are represented, and collection of such entities is nothing but the entity type. Each entity type in a database is described by its name and attributes. Okay, तो किसी भी entity type को एक name होता है, जैसे हम लोग ने employee नाम दिया, and it has a attributes like salary, age, employee ID, and so on. Okay, the collection of all entities of a particular entity type. Okay, मतलब all entities मतलब all employees ऐसा consider करो of a particular entity type जिसका नाम है employee in the database at any point in time is called entity set. तो जो भी ऐसे 100 एम्प्लॉइज है उनके अभी करंटली जो वैल्यूज चल रहे हैं, उसका सैलरी जो भी है, नेम, एम्प्लॉय आईडी, ऑल दिस कलेक्शन इज कॉल्ड एज अ एंटिटी सेट, इसको एंटिटी सेट बोलते हैं। ठीक है, द एंटिटी सेट इज यूजुअली रिफर्ड to using the same name as the entity type.
तो ये दोनों को हम लोग एक ही नाम यूज करते हैं. लाइक व्हेनेवर यू वांट टू टॉक अबाउट एंटिटी सेट तो उसको भी एम्प्लॉई बोलेंगे, एंड एंटिटी टाइप देन उसको भी एम्प्लॉई ही कहेंगे. ठीक है. बट दिस इज अ डिफरेंस कि एंटिटी टाइप मतलब इज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज दैट हैव सेम एट्रीब्यूट्स. वो एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहा है. एंड एंटिटी सेट इज टॉकिंग अबाउट कलेक्शन ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी टाइप एट एनी पॉइंट इन टाइम. उस डेटाबेस में अभी के लिए जो उनकी वैल्यूज है, दैट कलेक्शन इज कॉल्ड एज अ एंटिटी सेट. Okay, now see this diagram. There are two entity types are given. Entity type name, one is employee, second is company. Okay, employee has attributes name, age, salary, so you can call this as a entity type. ये इतना जो दिख रहा है ये entity type हो गया. ठीक है. Now there are such different entities available, like जिसको हम लोगों ने नाम दिया यहाँ पे small e1, e2, e3, company के लिए c1, c2 and so on. These E1 will have this value like John Smith, 55, 80K, so age and salary and all that. Okay. So this collection at any point in time from the database is called as an entity set. इसको entity set बोलते हैं. And apart from that, इसको extension भी बोलते हैं. ठीक है. And here like company name, headquarters, president. So like company, suppose this is a company. So इसका नेम, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, प्रेसिडेंट कौन है एंड सो ऑन. ओके, सो ऐसे C1, C2 ऐसे जो भी कंपनीज रहेंगे उनका कलेक्शन को विल कॉल इट एज अ एंटिटी सेट. एंड कंपनी एंड ये जो एट्रीब्यूट्स देखे विल कॉल इट एज अ एंटिटी टाइप. So this is the difference between what is entity type and what is entity set. Okay, so this can be asked in an exam, not just kind of theory, but in your practical exam also. So remember this thing. Okay, and from this values, some values as called as a key attribute, जिसको हम लोग बोलते हैं, that is given on the next slide. Okay, so now we'll come to the key attribute values. Okay, when we go to the next chapter, इसमें अलग-अलग types है keys के that we'll see, but here we'll just talk about a key attribute क्या होता है. Okay, the key attribute is represented in this fashion. ओवल और उसके अंदर टेक्स्ट रहेगा एंड दैट टेक्स्ट विल बी अंडरलाइन. ये जो भी टेक्स्ट है दैट इज अंडरलाइन. की एट्रीब्यूट क्या होता है? ऑफ एन एंटिटी सेट is an attribute which identifies all the entities from an entity set uniquely. Okay, key attribute नाम से ही पता चलता है. key is nothing but you can say uniqueness. ये uniqueness form करता है. तो whatever you can say entities or entity set you have, that will be uniquely identified with the help of this particular key attribute. Say for example employee ID. तो किसी भी कंपनी में employee ID unique ही रहेगा, right? कोई भी दो एम्प्लॉइज को एक एम्प्लॉय आईडी असाइन नहीं होता है एज द वे यू हैव हियर स्टूडेंट आईडी व्हिच इज नॉट रेप्लिकेटेड टू अनदर स्टूडेंट. ओके, so that is called as a key attribute. So such kind of fields are called as a key attribute that uniquely identifies the other attributes, okay, from the entity. So for example student ID is a key attribute for a student entity set. की और यूनिकनेस कंस्ट्रेंट्स ऑन एट्रीब्यूट्स. तो यहाँ पे की का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ यूनिकनेस कंस्ट्रेंट इज पोस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, जिसे आप की एट्रीब्यूट बोल रहे हो. मीनिंग इज दैट कि उसके डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकते. ओके, इट विल हैव ओनली सिंगल वैल्यू फॉर पर्टिकुलर एंटिटी टाइप और पर्टिकुलर एंटिटी फ्रॉम एंटिटी सेट. तो उसका एक ही वैल्यू रहेगा फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड. In ER diagrammatic notation, each key attribute has its name underlined inside a oval, जैसे यहाँ पे दिख रहा है. Okay, so that is a symbolic representation for key attribute in ER diagram. Okay. If an attribute is a key of an entity type, then uniqueness property must hold for every entity set of the entity type. Okay. So ये uniqueness property जितने भी you can say entities available है at that point of time इन एंटिटी सेट, तो उनके सबके ऊपर ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी अप्लाई होता है. ओके, सिंपल ये सेम मीनिंग है फॉर दिस स्टेटमेंट कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज उसको असाइन नहीं होना चाहिए. देन दैट वायोलेट्स द कंस्ट्रेंट, यूनिकनेस कंस्ट्रेंट वो वायोलेट करता है. सम एंटिटी टाइप्स हैव मोर देन वन की एट्रीब्यूट. हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि किसी एंटिटी टाइप को मोर देन वन की एट्रीब्यूट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल each of the vehicle ID and registration attributes of entity type car. Okay, इसका जो डायग्राम है वो नेक्स्ट स्लाइड पे दिया है. अंडरस्टैंड vehicle ID and registration number. Okay, ये डायग्राम हम लोग देखते हैं कि कैसे यूनिक है.
दिस इज अ कार एंटिटी टाइप, राइट, एंड इट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स, उसके सराउंडिंग में एट्रीब्यूट्स है। नाउ यू विल कम टू नो कि अलग अलग टाइप के कुछ एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे। दिस रजिस्ट्रेशन इज अंडरलाइन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस रजिस्ट्रेशन इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, क्योंकि इसमें से ये स्टेट और नंबर ये कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन बिकम्स अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। व्हीकल आईडी आल्सो अंडरलाइन है, तो ये भी की एट्रीब्यूट है। कलर डबल ओवल है, तो ये कौन सा एट्रीब्यूट है? कैन एनीवन टेल कौन से टाइप का एट्रीब्यूट है? एनीवन? हाँ, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, बराबर। मतलब कोई कार में सपोज दो दो कलर है, ओके, लाइक नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं कार्स वो सिंगल कलर के रहते हैं, व्हाइट जो भी है, ब्लू एंड ऑल, बट कुछ कार्स में अलग अलग डिजाइन के मतलब दो कलर्स हो सकते हैं। कार कैन बी ऑफ 3 कॉम्बिनेशन कलर, तो उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ गया, मतलब वो कार मल्टी कलर है, तो उसमें हम लोग ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट दे सकते हैं। ओके, अगर आप जो कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसमें सिर्फ सिंगल कलर है तो ये मल्टी वैल्यूड नहीं रहेगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर रजिस्ट्रेशन एंड व्हीकल आईडी, ये दो यूनिक एट्रीब्यूट्स है फॉर दिस कार एंड वी कॉल इट एज अ की एट्रीब्यूट, इनको हम लोग की एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच ये जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट विच इज मेड फ्रॉम स्टेट एंड नंबर। स्टेट एंड नंबर से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? सी, कार कैन हैव दिस नंबर दैट इज स्टेट लाइक MH48 जो भी होता है एंड नंबर सपोज 4 5 6 7 ऐसा कुछ नंबर, राइट। तो ये स्टेट जो बिलोंग इंडिकेट करता है वो एक कोड रहेगा एंड एक नंबर रहेगा। ठीक है, अगर आप स्टेट लेते हो तो वो स्टेट खुद से कोई प्राइमरी की नहीं है या फिर खुद से कोई की एट्रीब्यूट नहीं है। अभी MH48 वाले कितने सारे कार्स रहेंगे, राइट, तो ये तो की नहीं बन सकता। अभी MH48 के आगे एक 4 डिजिट वाला नंबर लगता है, बराबर से 1 2 3 4, लेकिन MH47 वाला भी नंबर रह सकता है ना, 1 2 3 4, राइट। तो 1 2 3 4 को भी हम लोग की कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, बट ये दोनों को अगर मिला ले तो रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है विच कैन बी अ यूनिक नंबर। ओके, तो ये यूनिक आईडी हो सकता है, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ की एट्रीब्यूट। और सेम व्हीकल आईडी यूनिक रहता है तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ की एट्रीब्यूट। सो हियर देयर इज अ एग्जांपल, जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने देखा था एंटिटी सेट का। सो कार एंड ये जो है रजिस्ट्रेशन, अभी रजिस्ट्रेशन आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे, बिकॉज दिस इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, नंबर कॉमा स्टेट। व्हीकल आईडी दैट इन मेक, मॉडल, ईयर एंड कलर। कलर इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, तो इसको कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है ये है आपका कार का एंटिटी सेट। दिस इज अ एंटिटी सेट फॉर कार, लाइक कार 1, कार 2, कार 3 एंड दे हैव सो वैल्यूज लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ से आपको पता चलता है, देखो ABC 1 2 3 के दो है कार, तो उसको तो कंसिडर नहीं कर सकते इंडिविजुअली स्टेट को। हाँ, एंड वैसे ही टेक्सास भी देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो नंबर जो भी है ये वैल्यूज ये हम लोग यूनिकनेस कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, सो दैट्स व्हाई ये दोनों को अगर क्लब करेंगे देन वी कैन हैव अ की एट्रीब्यूट जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। ओके, सो मींस मीनिंग टू से इज दैट दैट पर्टिकुलर एंटिटी कैन हैव मोर देन वन की एट्रीब्यूट। ओके, तो दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हो टू आइडेंटिफाई ईच कार यूनिकली, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर व्हीकल आईडी। ओके, बट दोनों यूज नहीं करना है, दोनों में से एक ही यूज इज इनफ फॉर की एट्रीब्यूट। I hope you have understood what is the meaning of key attribute and how it is represented in a oval and underline. Okay. Any doubt till now? Not इतना difficult नहीं है, but ठीक है, if you have doubt you can ask. Now type आ गया अभी entity का, it's a very important point ये दोनों। Okay, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी, इसका सिलेबस में नाम ही डायरेक्टली लिखा है वीक एंटिटी सेट्स। ओके, या फिर स्ट्रॉन्ग का नाम मेंशन नहीं किया है बट ऑब्वियसली वीक का नाम मेंशन किया है। ओके, एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स अ वीक एंटिटी सेट। तो अभी तक अब लोग ने जो एंटिटीज देखे नॉर्मली दे आर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग कार की बात करते हैं तो कार इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट बिकॉज इट हैज अ की एट्रीब्यूट, उसका खुद का की एट्रीब्यूट है। ठीक है, सो उसका अपोजिट हो गया वीक एंटिटी सेट। ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल रेक्टेंगल। सी, an entity set that does not have sufficient attributes to form a primary key is termed as weak entity set। मतलब कुछ एंटिटी के पास ऐसे एट्रीब्यूट्स नहीं है जिनका क्लबिंग करके भी मैं प्राइमरी की नहीं बना सकता हूँ, या फिर आई एम नॉट एबल टू मेक की एट्रीब्यूट। ओके, मतलब लाइक कंपोजिट एट्रीब्यूट बना के, जैसे वहां पे स्टेट एंड नंबर को क्लब किया था,
still I'm not able to make a key attribute, then such entity is called as a weak entity set. Usko weak entity set bolte hain. Okay, or in simple terms, the entity set which does not have its own key attribute or does not have its own primary key is called as a weak entity set. Okay, it that is weak is represented by double rectangle. ये इसके लिए मेंशन किया है क्योंकि आपको लगेगा नहीं तो ये स्ट्रॉन्ग ऐसे मेंशन करते हैं. Okay, so that's why it's a weak is represented by double rectangle. Strong is represented by single rectangle. An entity set that has a primary key is termed as strong entity set. तो strong entity का definition इसके opposite रहेगा कि जिसके पास खुद का primary key होता है, that entity is called as a strong entity set. Okay. Now here there is a term, कुछ terms है इसमें that is called as a identifying or owner entity set. Okay. Now who is identifying or owner entity set? Okay. जिससे weak entity set आइडेंटिफाई हो सकता है. ओके, लाइक वीक एंटिटी सेट के पास खुद के पास की एट्रीब्यूट नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, कैसे उसके जो एट्रीब्यूट्स है उनको यूनिकली कैसे फाइंड आउट करेगा या रिप्रेजेंट कैसे करेगा. देन वीक एंटिटी सेट डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी सेट फॉर यूनिकनेस और फॉर प्राइमरी की पर्पस, एंड दैट एंटिटी सेट इज कॉल्ड एज अ ओनर एंटिटी सेट. मतलब वो दूसरा वाला जो सेट है एंटिटी सेट that owns this weak entity, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. Then that set is called as a identifying या फिर owner entity set उसको बोलते हैं. The weak entity set is said to be existence dependent on identifying entity set. तो ये identifying entity set पे वो dependent है. Okay, इसका example भी हम लोग देखेंगे. Then you will come to know कि this particular weak entity is depending on that particular identifying entity for key attribute. Key के लिए उसको depend रहना पड़ता है. Next term comes identifying relationship. The relationship associating a weak entity set with the identifying entity set, इसको बोलेंगे identifying relationship. मतलब weak entity set में और जो strong entity set है जो उसको belong करता है, actually we don't call it as a strong entity set. उसको एक अलग special नाम है. Obviously वो strong entity set है, but उसका special नाम यहाँ पे लिखा है. That is identifying entity set या जिसको owner entity set बोलते हैं. तो वीक एंटिटी सेट एंड ओनर एंटिटी सेट या फिर आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड एज अ आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप. ओके, उसको आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स बोलते हैं. ओके, दीज आर ऑल द टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू द वीक एंटिटी सेट. ये अलग अलग टर्म्स है, सो यू शुड नो दिस टर्म्स. ओके, और इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, देन विल बी क्लियर. ओके, और एक टर्म आ गया, द डिस्क्रिमिनेटर, और जिसको बोलते हैं पार्शियल की. ऑब्वियसली वीक एंटिटी के पास खुद का कोई की नहीं होता है, की एट्रीब्यूट नहीं होता है या प्राइमरी की नहीं होता है, बट डिस्क्रिमिनेटर ऑफ वीक एंटिटी सेट. तो वीक एंटिटी के पास जो भी कुछ है जिससे वो थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर सकता है, ऑब्वियसली इट हैज टू टेक हेल्प फ्रॉम आइडेंटिफाइंग एंटिटी. ओके, तो उसका कोई एट्रीब्यूट और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स क्लब करके बनता है डिस्क्रिमिनेटर, और जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल की. सो द डिस्क्रिमिनेटर ऑफ वीक एंटिटी सेट is a set of attributes that allows a distinction to be made among entities in weak entity set. तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि फिर weak entity वाला अपने entity set के जो values है, जो like entities है, उनको कैसे identify करेगा, तो for that it uses a discriminator, और जिसको partial key बोलते हैं. What forms a discriminator? ये discriminator बनता कैसे है, तो कुछ keys और कुछ attributes of weak entity and some attributes or key attribute of identifying entity. Identifying entity का primary key attribute and weak entity के कुछ attributes. Okay, इनको club करके, इनको join करके जो बनता है, that is nothing but a discriminator, or you can say partial key. The primary key of a weak entity set is formed, ये यहाँ पे लिखा है, by the primary key of the identifying entity set plus the weak entities सेट्स डिस्क्रिमिनेटर. तो ये वीक एंटिटी के पास जो भी है डिस्क्रिमिनेटर, उनको और इस प्राइमरी को क्लब करके वीक एंटिटी का प्राइमरी की बनता है. A weak entity set can participate in a relationship other than identifying relationship. Okay, मतलब जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि what is identifying relationship? The relationship that exists between weak entity set and identifying entity set. इनके बीच में जो relationship है, that is called as a identifying relationship. But this weak entity set can participate in another relationship. दूसरे भी relationship में वो participate कर सकता है किसी दूसरे entity के साथ. Okay, तो that possibility is also there.
In some cases, the database designer may choose to express a weak entity set as a multi-valued composite attribute of owner entity set. ओके तो अलग से एक वीक एंटिटी बनाने की बजाय ऐसा भी किया जा सकता है, बट फॉर बेटर पर्पस वीक एंटिटी सेट बनाते हैं. बट अगर वैसा नहीं करना है तो डिजाइनर क्या कर सकता है, डिजाइनर कैन क्रिएट इंस्टेड ऑफ दैट वीक एंटिटी उसके जो भी एट्रीब्यूट्स है वो आइडेंटिफाइंग एंटिटी के पास दिखा के उसका मल्टी वैल्यूड कंपोजिट एट्रीब्यूट बना सकता है इंस्टेड ऑफ शोइंग अलग से वीक एंटिटी सेट. ओके इस डायग्राम से आपको सब क्लियर हो जाएगा कि क्या और क्या है. ओके एवरी नेम इज गिवन ओवर हियर. ओके नाउ सी देयर इज अ बिल्डिंग. ए बिल्डिंग एक एंटिटी टाइप है. ओके दूसरा है अपार्टमेंट. ओके अपार्टमेंट नाम का एक एंटिटी टाइप है, बट दैट इज अ वीक एंटिटी टाइप बिकॉज इट इज शोन एज अ डबल रेक्टेंगल. दिस वीक एंटिटी सेट अपार्टमेंट एंड बिल्डिंग जो कि आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट है जो अपार्टमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, which we call it as a strong entity set या identifying entity set और owner entity set, अलग अलग नाम है. इनके बीच का जो रिलेशन है दैट इज जस्ट नेम गिवन है BA. बिल्डिंग और अपार्टमेंट है तो BA ऐसा कुछ रिलेशनशिप का नाम दिया है. BA इज अ आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप और वीक रिलेशनशिप, ये इसका नाम है. ठीक है नाउ ये क्या है, ये लिखा है वो बाद में देखते हैं. फर्स्ट ये कैसे फॉर्म कर रहा है अभी देखो. सपोज कि आपके पास एक बिल्डिंग है. बिल्डिंग मतलब इट्स comprises of many buildings, okay actually, and that entity is represented as a building. okay suppose 10 buildings है. okay एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लोग बिल्डिंग बोल रहे हैं एंड उसके अंदर 10 अलग अलग बिल्डिंग्स है. ठीक है तो 10 अलग अलग बिल्डिंग्स को हम लोग बोल सकते हैं काइंड ऑफ यू कैन से मींस वो बिल्डिंग्स है एंड उनके अंदर अपार्टमेंट्स है. अपार्टमेंट मतलब लाइक फ्लैट्स समझ लो. ठीक है अभी हर एक फ्लैट का एक नंबर है, डोर नंबर. ओके सबको रहता है लाइक 001. ओके अभी के लिए जैसे 201 बोलेंगे तो सेकंड फ्लोर का फर्स्ट रूम एंड काइंड ऑफ थिंग. तो ऐसे कुछ नंबर्स है. लेकिन एक बिल्डिंग में सपोज बिल्डिंग जो पहला बिल्डिंग है उसमें भी 201 रहेगा, सेकंड फ्लोर का फर्स्ट रूम है. दूसरे बिल्डिंग में भी सेकंड फ्लोर का फर्स्ट रूम है, उसका भी नंबर 201 है. तीसरे बिल्डिंग में भी है 201. तो फिर पता कैसे करेंगे कि अगर हम लोग 201 बोल रहे हैं अपार्टमेंट तो कौन से बिल्डिंग में जाने का, राइट. सो फॉर दैट दिस अपार्टमेंट एंटिटी जिसके पास ये डोर नंबर है, ठीक है, डोर से क्या कर सकता है वो एक बिल्डिंग का डोर फाइंड आउट कर सकता है कि उसमें 201 है. सो व्हाट इट विल डू, इट विल टेक अ हेल्प फ्रॉम बिल्डिंग जिसका ये जो बी नंबर है, बिल्डिंग नंबर, ये इसका प्राइमरी की है इसका बिल्डिंग का, राइट. अभी बिल्डिंग नंबर तो यूनिक ही रहेगा ना, बिल्डिंग 1 2 3 4 अप टू 10. ओके तो 1-201 अगर ऐसा हम लोग बोलेंगे तो हम लोग को पता चलता है कि फर्स्ट बिल्डिंग का 201 नंबर फ्लैट. 2-201 बोलेंगे तो सेकेंड बिल्डिंग का 201 फ्लैट. ठीक सो ये हो गया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ अपार्टमेंट को हम लोग वीक एंटिटी सेट बोल रहे हैं एंड बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग एंटिटी या आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट बोल रहे हैं. ठीक है तो इसका प्राइमरी की बिल्डिंग का एंड इसका ये वाला की दैट इज डोर नंबर जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटर और पार्शियल की, इन दोनों को क्लब करके ये अपार्टमेंट अपना खुद का प्राइमरी की बना सकता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वीक एंटिटी सेट. लेकिन डोर नंबर से वो खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता क्योंकि अगर हम लोग डोर नंबर बोलेंगे 201 तो ऐसे 10 फ्लैट है उस अलग अलग बिल्डिंग्स में, तो इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड. ओके नाउ यहाँ पे एक डुप्लीकेशन है. ओके मतलब एक रेप्लीकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं. ये दिख रहा है देखो अपार्टमेंट एंड एड्रेस और यहाँ पे भी अपार्टमेंट एंड एड्रेस. ओके अभी इस डायग्राम में वो पर्पसफुली रखा है. ओके क्योंकि एक्चुअली अपार्टमेंट एंड एड्रेस ये बिल्डिंग के एट्रीब्यूट्स है तो हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं. इफ वी आर टेकिंग इट एज एट्रीब्यूट्स फॉर वीक एंटिटी अपार्टमेंट तो हम लोग इनको यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं. बट अभी के लिए इस डायग्राम में वो दिखाया है, बट जब आप एक्चुअल डिजाइन बनाओगे तो आप इसको रिमूव कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है नाउ why it is done like this, because कि ये इनिशियल डिजाइन था. दैट्स व्हाई पहले इन्होंने बिल्डिंग बनाया, फिर बिल्डिंग में बिल्डिंग नंबर ये यूनिक की है, बिल्डिंग का नाम. ओके अपार्टमेंट्स. ओके बिल्डिंग का नाम को की नहीं रखा है क्योंकि माइट भी ऐसा हो सकता है एक बड़े कॉम्प्लेक्स में दो बिल्डिंग का नाम या एक एरिया में दो बिल्डिंग्स का नाम सेम हो सकता है. ओके इसके लिए वो नहीं रखा है. अपार्टमेंट एंड एड्रेस था क्योंकि ऑब्वियसली वो जो बिल्डिंग्स है उनमें अपार्टमेंट्स है और उसके कुछ एड्रेसेस है फॉर एग्जांपल. बट अभी हम लोग ने क्या किया, इसमें से अपार्टमेंट नाम का अलग वीक एंटिटी बनाया तो इनको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, इनको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, राइट. सपोज अ पर्टिकुलर डिजाइनर डोंट वांट टू शो वीक एंटिटी, मतलब ये नहीं दिखाना है मुझे, वीक एंटिटी नहीं बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको निकाल दो. ये डोर नंबर को भी आप यहाँ पे दे सकते हो एज एट्रीब्यूट
ओके, या फिर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कर सकते हो। लाइक ये जो अपार्टमेंट है इसको एरो करके यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डोर नंबर या फिर ऐसा आप लिख सकते हो, एड्रेस एंड डोर नंबर। ओके, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं अपार्टमेंट नाम को यहाँ पे लूंगा अपार्टमेंट, फिर उसका डोर नंबर, एड्रेस, ऐसे दो कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स बना के आई कैन क्रिएट अ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। तो मैं इसका कंपोजिट एट्रीब्यूट बना सकता हूँ, ठीक है। या फिर ये डिजाइन है, ओके। आइडियल सॉल्यूशन की आप बेटर वीक एंटिटी बना लो और उसके ऊपर वो रिलेशनशिप शो करो इंस्टेड ऑफ हैविंग कंपोजिट एट्रीब्यूट्स टू अ बिल्डिंग। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लास्ट में लिखा था, दैट इन सम केसेस द डेटाबेस डिजाइनर मे चूज टू एक्सप्रेस अ वीक एंटिटी एज अ मल्टी वैल्यूड कंपोजिट एट्रीब्यूट ऑफ द ओनर एंटिटी सेट, तो वैसा भी हो सकता है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस।